اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان، جب برائی دیکھو تو زبان ہاتھ سے روک لو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولو، اور یہ بھی طاقت نہیں ہے تو نفرت تو کرو۔ کیسی ہم نفرت کرتے ہیں؟ کس سے نفرت ہم کرتے ہیں؟ جو حق بولتا ہے اس سے نفرت کرو۔ امام صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، امام صاحب کو یہ نہیں بولنا چاہیے، مسجد میں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ کون سی امامت؟ اگر اس ممبر رسول پر بھی اگر کھڑے ہو کر کے ہم حق نہ بول سکے تو ایسی امامت سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی امامت سے۔ جاہلوں اور گنواروں کو لا کر کے امامت کے مصلی پہ کھڑے کر دو۔ اور آج بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر مسجد کمیٹی والے کہہ دیں کہ تمہیں حق بولنے کی اجازت نہیں ہے تو اسی وقت میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ اگر اس ممبر رسول کی آبرو ہم نہ رکھ سکیں، اگر ممبر رسول کی آبرو ہم نہ بچا سکیں، یہاں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے تھپتیاں سننے کے لیے رہیں اور لوگوں کو خوش کرنے والی تقریر کریں، تو پھر ہم سے بڑا غدار دین کا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ممبر رسول کی آبرو سے اگر ہم کھلواڑ کریں، اس منصب سے اگر ہم غداری کریں، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف انسان جو امامت کے لائق خود نہیں ہوتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جو حق بولتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہوتا ہے لیکن وہ اندھے ہوتے ہیں، اس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے پاس کان تو ہوتے ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ بہرے ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ جس کے پاس دل دماغ ہو اور سوچنے کی قوت سلب ہو جائے، جس کے پاس آنکھیں ہوں اور حق دیکھنے کی قوت ختم ہو جائے، جس کے پاس کان ہو اور حق سننے سے وہ عاری ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرما رہا ہے اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اب اس کے آگے اور کیا بولا جا سکتا ہے؟ دیو جانس کلبی ایک بڑا ہی دانا انسان تھا، سکندر کے زمانے کا تھا۔ وہ دن کے اجالے میں چراغ لے کر کے گھومتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا، لوگوں بتاؤ میں انسانوں سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ انسان کون ہے؟ لوگ کہتے تھے کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تم دو ٹانگوں والے جانور ہو، انسان نہیں ہو۔ مجھے غیرت مند انسان کی ضرورت ہے جو حق بولے، جو حق سنے اور حق کی تلقین کرے، میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم تو دو ٹانگوں والے جانور ہو۔ دلی میں وبا پھیلی، ایک ایک دن میں 10 جنازے اٹھنے لگے، لوگ مرنے لگے۔ ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے، کہا حضور دعا فرمائیے کہ یہ وبا ختم ہو جائے، انسان مر رہے ہیں، ایک ایک دن میں 10 جنازے اٹھ رہے ہیں، دعا فرمائے کہ یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اس بزرگ نے کہا کس سے کہا تم نے کہ وہ انسان مر رہے ہیں؟ انسان نہیں مر رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ پگلو، انسان جب مرتا ہے تو پھر وبا کو بھی موت آ جاتی ہے، اس بزرگ نے کہا تھا۔ اور دوسرے دن جب کوئی وبا نہیں آئی، لوگ پھر پہنچے اس کے پاس اور کہا کہ حضور کیا وبا ختم ہو گئی؟ لیکن جب اس کے جھوپڑے میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس بزرگ کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا وہ موت اپنی حاصل کر کے مر کر کے یہ بتلا دیے کہ جب انسان مرتا ہے تو وبا کی بھی موت آ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی ایک شخص کو لے کر کے بازار کی طرف چلے، اور بازار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں، یہ لوگوں کی تعداد ہے، یہ سروں کی بھیڑ ہے۔ اس نے حضرت خواجہ بایزید بسطامی نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، کہا اب دیکھو۔ دیکھا تو اس نے بتایا کہ کچھ لوگ خنزیر بنے ہیں، کچھ لوگ گدھے ہیں، کچھ لوگ جانور ہیں، کچھ لوگ بیل ہیں، کچھ ریچھ ہیں، کچھ بندر ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا یہ ہے حقیقت، جسے تم دیکھ رہے ہو اپنی ظاہری نگاہ سے کہ وہ انسان ہیں، حقیقت میں وہ انسان نہیں، جانور ہیں، جانور۔
جس کی طرف اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں جو حق نہیں بولتے ہیں، حق نہیں سنتے ہیں اور حق کی تلقین نہیں کرتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہے، جو حق سنتا نہیں ہے، حق بولتا نہیں ہے۔ برائی برائی ہے، برائی کے خلاف بولنا ہر شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن ہم چونکہ عقل سے عاری ہو چکے ہیں، دہشت میں ڈوب جاتے ہیں، اس وجہ سے بول نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق غالب آتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، شخصیتیں مر جاتی ہیں، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی جو تبلیغ ہوتی ہے، وہ کبھی مرتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جاویداں رہتی ہے۔ امام حسین بظاہر طور پر شہید کر دیے گئے، لیکن کیا ان کی فکر مر گئی؟ نہیں، یزید مر گیا، اس کے نظریات مر گئے۔ امام حسین تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ جو حق کا داعی ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ دھمکیاں مجھے بھی مل رہی ہے، مارنے کی دھمکی، تو FIR کرنے کی دھمکی، دنیا بھر کے خرافات۔ لیکن یہ سفر کوئے جانا، یہ سفر کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، یہ سفر کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنی طاقت کی بنیاد پر روکنے کی کوشش کرے، لیکن اگر طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، ظلم کے خلاف لڑ نہیں سکتے ہو، تب پھر کیا کرو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان لم یستطیع فبلسانہ، اگر تم طاقت سے اس کو روک نہیں سکتے ہو تو کم سے کم زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے، زبان پہ اگر تالا لگ جائے، منہ پہ اگر دہی جم جائے، اگر تم گونگے شیطان ہو جاؤ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکلمۃ الحق الساکت کلمۃ الحق فہو شیطان اخرس، جو حق بات چھپاتا ہے، جو حق بات نہیں بولتا ہے، وہ گونگا شیطان ہوتا ہے۔ تو جو اگر زبان سے بھی نہ بول سکے، منہ پہ اگر تالے لگ جائیں، منہ میں اگر دہی جم جائے، پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فَبِقَلْبِهِ، تو پھر تم دل میں اس کو نفرت کرو، شدت کے ساتھ نفرت کرو، کم سے کم راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، سوچے تو آدمی صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غور فکر تو کرے کہ ہمارے موجودگی میں کیوں یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ کو فکر کریں کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اگر زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اگر دل سے نفرت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسلام کا، ایمان کا یہ آخری درجہ تھا، اس کے نیچے کوئی ایمان کا درجہ ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے جس دور میں بھی ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف اگر آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اوحی اللہ عز و جل الی جبریل
अल्लाह रब्बे ज़ुल-जलाल ने जिब्रील को वही फरमाई और फरमाया कि इन इक़लिब मदीनतन फला व फला बि अहलिहा, ऐ जिब्रील जाओ फला फला बस्ती को वहाँ के लोगों समेत पलट दो, उलट पलट के रख दो। हज़रत जिब्रील ने कहा या रब्बी इन्ना फ़ीहिम फलानुन, वहाँ पर तेरा एक ऐसा बंदा है जो पलक झपकते भर भी तेरी नाफरमानी नहीं की है, एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं की। एक ऐसा बंदा है जो एक लम्हा, बताइए विलायत का वो कौन सा दर्जा है या कौन सा वली है कि जिसकी एक पलक झपकने इतना भी उसने अल्लाह की नाफरमानी न की हो। बोल कौन रहा है? जिब्रील कह रहे हैं परवरदिगार उस बस्ती में एक ऐसा बंदा है जो पलक झपकते तक भी तेरी नाफरमानी नहीं की है, क्या उस बस्ती को उलट दूं? अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि इक़लिब अलैहि व अलैहिम, पहले उस बदबख्त को उल्टो, पहले उसकी गर्दन मरोड़ो। इसलिए कि जब हुदूदुल्लाह की पायमाली हो रही थी वो गूंगा शैतान बना हुआ था, उसकी इबादतों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब बुराई बढ़ रही थी वो रोक नहीं पाया तो कम से कम बोलना चाहिए था, बोल नहीं पाया। दिल में नफरतें करनी चाहिए थी, वो बैठ करके खानकाहों में अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था, वो तस्बीह हिला रहा था, वो नवाफिल पढ़ रहा था। ना उसके तस्बीह की मुझे ज़रूरत है, ना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब मेरे दीन के साथ खिलवाड़ हो रहा था उसके माथे में शिकन तक नहीं आया। पहले उस बदबख्त को पहले जमीन में धंसाओ, उसके बाद उसके रहने वालों को बाद में धंसाना। यह हदीस मिरकात शरह मिशकात में भी और बहकी में भी है। अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह के हुदूदुल्लाह की जब पायमाली की जाती है तो अल्लाह किसी की इबादत करके आदमी करेगा क्या? लोगों ने हमसे भी कहा कि शब बारात का मौसम है, शब बारात का मौका है, उस मौजू पे तकरीर होनी चाहिए, इस मौजू पर तकरीर होनी चाहिए। बुराई के खिलाफ बोलने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को ये ड्यूटी दी है कि बुराई के खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी है, बोलना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम दिल में नफरत होनी पड़ेगी। इतनी नफरत कि कम से कम रातों की नींदें तो हराम हो। सोचो तो सही कि ये क्या हो रहा है, किस कदर बुराई फैल रही है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि जिब्रील पहले उस गांव को पलटो, पहले उस बदबख्त को पलटो। मेरे दीन के साथ मजाक होता रहा, कानून इस्लाम के साथ खिलवाड़ होता रहा और उसे तस्बीह सूझ रही थी, उसके माथे पर शिकन तक नहीं आया, कभी शिकन नहीं आया। इसलिए पहले उसे बदबख्त को जाओ। रात भर हम इबादत करते हैं शब बारात में या और दीगर चीज़ों में, क्या अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को हमारी इबादतों की ज़रूरत है? वो तो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह की हाकिमियत को मानना हमारे ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। नवाफिल आप पढ़ें या ना पढ़ें उसका इताब और उसका अजाब नहीं आएगा, लेकिन जो फ़र्ज है आपके ऊपर वो लाजिम है आपके ऊपर। अल्लाह की हाकिमियत को मानना हमारे ऊपर ज़रूरी है और उसके जो अहकाम है अल्लाह की हाकिमियत, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम्हें बुराई से रुकना है और लोगों को रोकना है। अगर हम बुराई को नहीं रोकते हैं, उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो अल्लाह हमारी इबादतों को हमारे मुंह पर मार देगा, ले जा करके रखो। रात भर इबादत तुमने किया, दिल में ये फतूर था कि हमें बुराइयों में शिरकत करनी है, मेले ठेले में शिरकत करनी है, नाजायज़ कामों में हमें शिरकत करनी है, ये तुम नियत लेकर के इबादत में मसरूफ़ थे। तुम्हारे इबादतों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी 10 साल पढ़ता है, तब आलिम और मुफ्ती होता है, कुरान पढ़ता है, दीन पढ़ता है, इस्लाम पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उसके बावजूद भी उसे अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता है। उसे कमेटी और अंजुमनों का डर होता है, लगता है कि हमारा रिस्क वही चला रहे हैं। हक बोलने के लिए मौलवी तैयार नहीं होते। जो मिंबर रसूल पर खड़े होकर के अगर हक नहीं बोलता है तो हकीकत यह है कि वो कुरान के इस आयत करीमा पर गौर नहीं करता है, उस पर फिक्र नहीं करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई ऐसा हशरातुल अर्द चरिंद परिंद जानवर नहीं है जिसको अल्लाह रिस्क ना देता हो। रिस्क का मालिक अल्लाह है।
जब तुमने दीन पढ़ा है, इस्लाम पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है, इस्लाम तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी देती है कि कम से कम जो हक है वो हक बोलो। और सिर्फ आलिम और मौलवी और हाफिज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी भी ड्यूटी है। कुरान ने सिर्फ मौलवियों और आलिमों को नहीं कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सिर्फ आलिमों को नहीं कहा, सबको कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, अपने मकाम को पहचानो, तुम कहाँ हो। तामुरूना बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर अच्छाई का हुक्म ना दे सको, अगर बुराई से ना रोक सको, तो तुम्हें फिर अच्छा कहलाने का कोई हक नहीं। अच्छा कहलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए और मुआशरे को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हमें बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा और उठना होगा। ये सिर्फ एक मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है या किसी एक आलिम की जिम्मेदारी नहीं, हर फर्द की जिम्मेदारी है। कोई भी गुनाह हो, कोई भी बीमारी हो, उसके खिलाफ हर शख्स को खड़ा होना है। अल्लाह रब्बुल जलाल और अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो हक ना बोल सके उसे मौका मिला, अल्लाह ने उसे ज़बान दी है, अल्लाह ने उसे दिल दिया है, अल्लाह ने उसे दिमाग दिया है। और जब आदमी अपने जिस काम के लिए जो चीज़ दिया जाता है, अगर उससे वो काम नहीं लिया जाए और उससे वो इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर वो इंसान कहलाने का लायक नहीं है। इंसान मुआशरे में आदमी तो है, इंसान नज़र नहीं आता, इसलिए कि हर इंसान आदमी हो सकता है, लेकिन हर आदमी इंसान नहीं होता। अगर हर आदमी इंसान होता तो अल्लाह रब्बुल जलाल ये नहीं फरमाता उलाइका कल अनाम, वो तो जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतरीन हैं, ये अल्लाह नहीं इरशाद फरमाता। और वाज़ेह कुरान की आयत करीमा है कि उनके पास दिल हैं लेकिन वो समझते नहीं, वो गौर नहीं करते हैं। उनके पास कान है लेकिन वो उससे सुनते नहीं हैं। उनके पास ज़बान है लेकिन वो उससे बोलते नहीं। गोया जो हक नहीं बोलता है, जो हक नहीं सुनता है, जो हक को कबूल नहीं करता है, जो बुराई के खिलाफ नहीं बोलता है, जो बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, जो गुनाहों में शिरकत करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है उलाइका कल अनाम, वो तो जानवरों की तरह है, बल हुम अज़ल, बल्कि वो उससे भी बदतर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान, जब बुराई देखो तो ज़बान हाथ से रोक लो, ताकत है तो हाथ से रोको, अगर ये भी ताकत नहीं है तो ज़बान से बोलो, और ये भी ताकत नहीं है तो नफरत तो करो। कैसी हम नफरत करते हैं, किससे नफरत हम करते हैं? जो हक बोलता है उससे नफरत करो। इमाम साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इमाम साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, मस्जिद में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कौन सी इमामत? अगर इस मेंबरे रसूल पर भी अगर खड़े होकर के हम हक ना बोल सके तो ऐसी इमामत से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ऐसी इमामत से। जाहिल और गंवारों को ला करके इमामत के मुसल्ले पे खड़े कर दो। और आज भी अगर हम कहते हैं कि अगर मस्जिद कमेटी वाले कह दे कि तुम्हें हक बोलने की इजाज़त नहीं है, तो इसी वक्त मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार होता हूँ। अगर इस मेंबर रसूल की आबरू हम ना रख सके, अगर मेंबर रसूल की आबरू हम ना बचा सके, यहाँ पर खड़े होकर के लोगों के थपकियाँ सुनने के लिए रहें और लोगों को खुश करने वाली तकरीर करें, तो फिर हमसे बड़ा गद्दार दीन का कोई नहीं हो सकता है। मेंबर रसूल की आबरू से अगर हम खिलवाड़ करें, इस मनसब से अगर हम गद्दारी करें, तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान जो इमामत के लायक खुद नहीं होता है। इसलिए हक जो है वो हक है, बुराई से रोकना हमारी जिम्मेदारी और हमारी ड्यूटी, और उसको बयान करना हमारे ऊपर फ़र्ज है। और सिर्फ आप मत समझिए कि सिर्फ सुनना हमारे ऊपर फ़र्ज है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने भलाई के हुक्म के लिए पैदा किया है और बुराइयों से रोकने के लिए पैदा किया है। अगर हम बुराई से लोगों को रोक रहे हैं, कम से कम अपने घर वालों को तो समझाओ। उन बुराई की जगहों से तो अपने घर वाले, अपने मेहमान जो आने वाले हैं उस पर तो कम से कम पाबंदी आयद कर दो, ऐलान कर दो कम से कम अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करके कि उस मेले ठेले में जहाँ पर बेहयाई और औरतों से साथ खलत मलत मेला ठेला जो होने वाला है, वहाँ पर मेरे रिश्तेदारों को आने की इजाज़त नहीं है।
हाँ दूसरे दिन आप आइए, मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन उस रोज हर शख्स अपने मेहमानों को फोन करके कह दे, या अगर वो लोग फोन करते हैं तो उन लोगों से आप कह दे कि उस दिन हमें आने की इजाजत नहीं है, आप अगर जबरदस्ती आते हैं तो आए, लेकिन आप ज़ियाफत की उम्मीद हमसे ना रखें। और एक दीनी मसला होने की हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, जिस गांव में जाएगी, जिस इलाके में जाएगी, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं दीनी हैसियत से, अल्लाह के रसूल के नायब होने की हैसियत से, मस्जिद की इमामत की हैसियत से मैं इस बुराई में शिरकत करने वाले एक एक फर्द को मैं रोकता हूं और बाइकाट करता हूं कि इन बुराइयों से आप हजरात रुके रहें, इन बुराइयों में आने की कोशिश ना करें। आप भी अपने अपने अफराद जो हैं, आपके रिश्तेदार, आप उनको कम से कम, ये मौका है, अभी बच्चों के इम्तहान का मौसम है, आदमी इम्तहान देने जाएगा कि मेला ठेला देखने जाएगा, और वो भी नाजायज़ काम। कौम को बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। कहाँ ये कौम जा रही है, किस आवारगी के शिकार हो रही है, किस कदर जहालत की दलदल में फंसती हुई चली जा रही है हमारी कौम, इसे किसी को कोई फिक्र नहीं। पैसा चाहिए, पैसा हराम के रास्ते से हो या हलाल के रास्ते से हो, या रिश्वत के रास्ते से हो, या चोरी के रास्ते से हो, या डकैती के रास्ते से हो, हराम का माला पैसा आना चाहिए। ये कौम तबाह हो जाए, होती रहे, हमारे पास पैसा आना चाहिए। कौन ऐसा घर है जो अभी लोहरदगा के कव्वाली या मेला ठेला हुआ, कौन ऐसा घर है जिसमें 2-4 हज़ार रुपया खर्च ना हुआ हो? आने में जाने में, बच्चों के सामान और शॉपिंग में, सामान खरीदने में कोई ऐसा घर है कि जिसमें 2000 कितने लाख और करोड़ों रुपया इस कौम का चला गया है? किसी को एहसास? यहां पर जो मेला और ठेला लगेगा, आपके एक जो गरीब से गरीब आदमी है उसके यहाँ भी मेहमान आएंगे तो 5-10 आएंगे। कौन ऐसा घर है जिसमें 1000-2000 रुपया खर्चा नहीं होगा? कभी सोचा है कौम के बारे में? कभी उन गरीबों के बारे में सोचा है? वो तो अपना टैक्स ले लेंगे खेल और तमाशा करने, और दुकान वालों से अपना जेब गर्म कर लेंगे, लेकिन इस कौम का क्या होगा, इस पर गौर किया है? यही एक इलाका मिला था, चराग जला के हमने रख दिया है राहों पर, चराग जला के मैंने रख दिया है राहों पर, अब कोई रास्ता भूले तो मैं क्या करूं? जो मेरा फर्ज था, जो मेरी ड्यूटी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने आप को रोके, अपने कौम को रोके, अपने रिश्तेदारों को रोके, या अपने मिलने जुलने वालों को रोके। कहाँ गई उन लोगों की नमाजें? वो इतना बड़ा इबादत गुजार था, वो एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने कहा पहले उसको पलटो। क्या फायदा इसी नमाजों से? इसका यह मतलब नहीं है कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दें, लेकिन जो अल्लाह का जो असल हुक्म है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, जो असल आपकी ड्यूटी है, जो आपकी असल जिम्मेदारी है, उस पर मुकम्मल तौर पर हर शख्स को अमल पैरा होना होगा, ताकि मुस्तकबिल में बुराई का खात्मा हो सके और बेहयाई का खात्मा हो सके। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।